Get ready for absolute cinema because Sarthak Goswami আৰু Open Letter তেখেতলোকে দুজনে মিলি অসমৰ বিষয়ে পাতিছে, অসমৰ ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে পাতিছে। কি পাতিছে চাও, unexpected collab obviously by first time in YouTube India we saw left and right collab together. I don't think any of them are right or left. কিছুমান content তাহাঁতৰ right হৈ যায়, কিছুমান তাহাঁতৰ left হৈ যায়, but as personalities, as YouTubers, as content creators, I don't think তাহাঁতি মানে এক পক্ষে সদায় কৈ থাকে, মাজে মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু। एक ऐसा स्टेट जहां हवा में विकास हो रहा है पर जमीन धस रही है। अच्छा, जहां इनसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चल रही है। सीएम बीजेपी का है पर वो नेता कांग्रेस का है। मैं बात कर रहा हूँ असम की, द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। बंगाल के पहले असम में इलेक्शन होने, इनफैक्ट असम के इलेक्शन सिर्फ असम का नहीं नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और असमीज लोगों के लिए ये असम की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये आज की नहीं है, ये सैकड़ों सालों पुरानी है। ये आती है अहोम डायनेस्टी से। 1200 से लेके 1800वीं शताब्दी में असम में अहोम डायनेस्टी चला करती है। আহোমৰ পৰাই নহয়, আহোমৰ আগতো বহুত মানুহ আছিলে ইয়াত, হয় নে নহয়? বহুত মানুহ আছিলে আহোমৰ পৰা স্টাर्ट হোৱা देश भर में दिल्ली सल्तनत मुगल्स ने आक्रमण किया था, कब्जा किया था। असम एक ऐसी जगह थी जहां मुगल कब्जा नहीं कर पाए थे। 17 बार उन्होंने अटैक किए थे और हर बार असमीज लोगों ने मुगलों को मार के भगाया था। बट फिर भी असम का जो नेशनलिज्म है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं, डिफेंसिव है। কছাৰী কিংডম আছিলে, চুতীয়া কিংডম আছিলে নেকি কেনেবাকে? নৰকাসুৰ, য়েছ নৰকাসুৰ। What we say define চুতীয়া কিংডম আছিলে, য়েছ মই চুতীয়া কিংডম আছিলে, কছাৰী আছিলে, তাৰ পৰা আমাৰ বড়ো মানুহখিনিও আছিলে নেকি, বড়ো, মিচিং, তিৱা, ৰাভা তেখেতলোক আছিলে নেকি, ট্ৰাইবছ আছিলে নেকি, আছিলে নে? চেট মই ভুল হ'ব পাৰোঁ দেই, এবাৰ ক'বাচোন, অলপ হিষ্ট্ৰীটো মোৰ কিবা কিবি হয় আৰু। ডিমাচা আছিলে, য়েছ ডিমাচা আছিলে, কোচ মানুহ আছিলে, বৰ্মন কিংডম, অ'কে। বড়ো নাছিলে বুলি কৈছে, আচ্ছা। বড়ো যাৰ কছাৰী, অ'কে, তেনেহ'লেতো আছিলে। ৰাজবংশী, য়েছ। ত' আহোমৰ পৰা যে অসমখন ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটোতো মই মানি ল'ব নোৱাৰো, কাৰণ আহোম বহুত পিছত আহিছে, মানে আমি আৰু বহুত পিছত আহিছো। ভাস্কৰ বৰ্মন, য়েছ য়েছ। ডিমাচা কিংডম, কছাৰী কিংডম, চুতীয়া किंगडम, यस यस, ऑल राइट। और आज जब असम में आउटसाइडर या इलीगल इमिग्रेंट की बात होती है तो वो जो डर है वो ये 600 साल पुरानी फोर्टिस मेंटालिटी से आता है। तो उनको डर रहता है कि वो जमीन जो हमारे पुरखों ने अपनी तलवार से बचाई है वो ये बैलेट बॉक्स और डेमोग्राफिक चेंज से छीनी तो नहीं जा रही है। और ये मियां मुस्लिम तो आज का है। असम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा से चलती है। मियां मुस्लिम आज का है? आई डोंट थिंक सो ब्रो। मतलब हाँ, मियां मुस्लिम और मियां का मतलब ही बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स ही है, ठीक है, बट आप असम एजिटेशन के बारे में पढ़ो, जो असम क्या बोलते हैं उसको, असम मूवमेंट हुआ था, वो आप देखो थोड़ा सा। অসম চুক্তিটো কি বুলি কয়, এইটো কি কয় ইংলিশত, मैं পাহৰি গলো। असम एकॉर्ड के बारे में पढ़ो। तो ये बांग्लादेशी वाला इशू तो बहुत सालों से है यार, ये आज का इशू तो नहीं है। आई बिलीव ऑलवेज दिस हैज ऑलवेज बीन एन इशू फॉर अस। रॉन्ग नो? क्लास 6 और কথা অলপ রিসার্চ কৰিব লাগিছিলে নেকি? अच्छा, असम को अगर आप डेमोग्राफिकली देखोगे तो दो तरीकों से भी क्लासिफाई कर सकते हो, बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली। Do we agree to this? L video লাগিছে, I don't know. Just do we agree to this? Brahmaputra Valley and Barak Valley অকল ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কৈ দিছে, মানে ঠিক আছে মই বুজিছো কি কৈছে, নেভাৰ টোটেলি মিছৰিপ্ৰেজেণ্টেড। এইটো চোৱা ন, আপাৰ আছাম আছে, লোৱাৰ আছাম আছে, নৰ্থ আছাম, চেণ্ট্ৰেল আছাম, বৰাক ভেলী আছে, ঠিক আছে। মই সেইটো ভাবিছো মে বি চিম্প্লিফাই কৰি দিছে নেকি হিন্দী ভাষী অডিয়েন্সৰ কাৰণে, নে কি কোৱা? ब्रह्मपुत्र वैली जो हार्टलैंड है। This is what happens when a mainlander makes a video on Assam. That's why we need a representation and voice in mainland like you who can tell our stories. हिंदी बोलनी पड़े, मतलब हिंदी बोलना पड़ेगा क्या अब? भाई हिंदी तो बोलने में बहुत तकलीफ लगती है मेरे को। मतलब हिंदी बोल तो लेता हूँ यार, बट मैं सोच रहा था if I speak in English then it would be silent. बराक वैली जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। Amazing use of AI. एसएमईज का स्ट्रगल बहुत पुराना है। 1961 में जब एसएमईज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश हुई तब सिलचर में दंगे हुए थे और 11 लोगों की जान गई। Okay. और सबसे ज्यादा बड़ी ये 1971 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। Right. बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं। Today is recorded as the end of East Pakistan. Watch first and criticize later. Okay, my bad. মোৰো ভুল হ'ব পাৰে। Maybe আমি বহুত জলদি criticize কৰিছো, এইটো হয়। My bad chat, my bad. उसके बाद से बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके असम की तरफ भागे। असम में लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने, सबने ये बोला है कि असमीज लोगों को डर रहता है, एक तरह से इनसिक्योरिटी है कि वो अपनी ही जमीन में माइनॉरिटी बन के ना। और इसी सेंटिमेंट ने जन्म दिया आंसू को। नहीं मतलब ये नहीं कि रो दिए वहाँ के लोग, आंसू मतलब ऑल असम अमेजिंग जोक यूनियन, जिन्होंने ये पॉलिटिक्स स्टार्ट की कि हमारे यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, बाहरियों को भगाएंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। ओके। उधर दिल्ली में सिखों की जान ली जा रही थी और यहाँ पे असम में होता है नीली मैसेकर, जब फरवरी की एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों को ढूंढ के मार दिया जाता है। ओके। और ये तो ऑफिशियल नंबर्स हैं।
फिर 1985 में राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड साइन किया। असम अकॉर्ड में इलीगल इमिग्रेंट्स की कट ऑफ डेट तय की गई 24 मार्च 1971। जो इसके पहले आ गया वो असम में बस गया, अपना लिया गया। जो इसके बाद आया वो इमिग्रेंट। इस अकॉर्ड ने वहां के स्टूडेंट लीडर्स को रातों रात स्टेट लेवल पॉलिटिशियन बना दिया। उन्होंने बनाया असम गण परिषद AGP और सरकार बना ली। लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस कोडिफाई हो गई। और जब रीजनल नेता फेल हुए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जो बीजेपी ने भरा, पर एक ट्विस्ट के साथ। आज वर्सेस देम चल ही रहा था। उन्होंने लड़ाई को बस एथनिक मतलब असमीज वर्सेस बंगाली से बदलकर रिलीजियस यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। प्लेबुक वही रहती है, बस कैरेक्टर बदलते हैं। आज হিন্দু মুছলিমৰ নেৰেটিভটো অসমত এটা কথা কম, বহুত আগত মানে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াতো একদমেই নাছিলে, এতিয়া অলপ অলপ আহিছে। বাট দেন ৰাইট নাও দ্য নেৰেটিভ ইজ ষ্টিল মানে এছামিজ ভাৰ্চেছ অবৈধ বাংলাদেশী আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ, আৰু বেচিকলি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ, সেইটোৱে হয়। বাট দেন হিন্দু মুছলিম কিমান বেছি ডাঙৰ সেইটো মই নাজানো ভাই। रूलिंग पार्टी दोनों वैलीज को ब्रिजेस और ये हाईवे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुराने जख्मों पर इकोनॉमी का प्लास्टर लगाया जा सके। मोदी जी जो असम में जाके टी गार्डन में फोटो शूट करा रहे थे ना, ऐसे ही फालतू का नहीं था, बहुत सोची समझी प्लानिंग है उसके पीछे। क्योंकि असम के जो इंडिजिनस लोग हैं वो ज्यादातर टी ट्राइब से जुड़े। असम की लगभग 20% आबादी इन्हीं टी गार्डन से आती है, जो इलेक्शन में बहुत बड़ा स्विंग वोटर होती है। जहां टी ट्राइब का वोट जाएगा उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो अगर आप इनका ट्रस्ट जीत लोगे तो सीधा 20% का वोट आपके साथ। ओके, कैलकुलेशन पॉलिटिक्स। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है असम की ज्योग्राफी। ब्रह्मपुत्र नदी हर मॉनसून में जमीन काट लेती है। ये समझाएंगे हमारे ओपन लेटर भाई। असम के बारे में एक चीज है जो पॉलिटिशियंस पार्टी मैनिफेस्टो और इलेक्शन कवरेज में कोई भी ठीक से नहीं बताता है। हाँ। ये स्टेट हर साल बाढ़ में डूब जाता है और हर বাই দ্য ৱে আছাম ফ্লাডছ আৰ ইনকামিং। বহুত জলদি আহিব, তোমালোকে বহুত নাটক তেতিয়াও দেখিবা যে আমি CM ফাণ্ড ৰিলিফ, ফ্লাড ৰিলিফ, টকা ডনেট কৰিছে, কোন কোম্পানীয়ে কি টকা ডনেট কৰিছে। ফ্লাড হ'ব, মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব, মানুহ ডিছপ্লেচ হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান ঘনিষ্ঠ নেতা গৈ কিনে তাত ফটো তোলাব, পানীত ইমান ভৰি সোমাই থাকি কিনে আৰু বিস্কুট বা পানী বিলাই আছে। তো গেট ৰেডি ফৰ ইট, মানে ইটছ এভৰি ইয়াৰ এটা ফেষ্টিভেল টাইপ হৈ গৈছে মানে ফৰ দিজ ৰুলাৰ্ছ অফ আছ। প্ৰব্লেমটো এইটো বাহাৰ মে যায়, প্ৰব্লেম কোনে সলভ কৰে ভাই? कुछ जमीन हमेशा के लिए चली जाती है। असम की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको वहां की मिट्टी का मिजाज समझना पड़ेगा, जो लिटरली लोगों के पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। ब्रह्मपुत्रा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक रूथलेस डिस्ट्रॉयर है जो हर साल स्टेट का नक्शा बदल के रख देती है। डैम। हिस्टोरिकली देखें तो 1950 के अर्थक्वेक के बाद से असम ने अपना लगभग 8% लैंड मास हमेशा के लिए खो दिया था। ये करीब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इमेजिन करके देखो, लंदन जैसे दो बड़े शहर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। इस फिजिकल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा शिकार हुआ था मजूली, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। 1950 में ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था और आज ये सिकुड़ के सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर আৰু এতিয়াও হৈ গৈ আছে অনবৰত कर रह गया है। लेकिन ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये डेमोग्राफिक डायनामाइट है। जब नदी किसी के घर को फ्लड करती है तो वो इंसान क्लाइमेट रेफ्यूजी बन जाता है और इन लोगों को मजबूरी में ड्राई लैंड्स की तरफ भागना पड़ता है, जहां पहले से ही जमीन की भारी कमी है। और यहीं से शुरू होता है असली टेंशन। जब ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड असमीज लोग नई जगह पहुंचते हैं तो उनका डायरेक्ट सामना उन माइग्रेंट से होता है जिन्हें ये लोग आउटसाइडर्स मानते हैं। तो एक तरफ जमीन कम হে, মাজুলীৰ যদি কোনোবা মানুহে, এনে মই কৈছোঁ, মাজুলীৰ মানুহে যদি কোনোবাই আহি কিনে ভাবিলে ধেমাজি গ'ল, লখিমপুৰ গ'ল, তেখেতলোক আমি আউটচাইডাৰ্ছ বুলি ক'ম? হে ব্ৰ, হোৱাট? আই ডোন্ট থিংক ছ' মাই মেন। দিছ আউটচাইডাৰ্ছ are the people who are crossing these borders and coming from Bangladesh and মানে spreading filth here. কি কইবে? Yo, you didn't understand what he said? এক সেকেন্ড, আকৌ কি কৈছে? আকৌ এবাৰ শুনুচোন। है, असली लैंड्स की तरफ भागना पड़ता है जहां पहले क्लाइमेट रेफ्यूजी बन जाता है। Climate और इन refugee। लोगों को मजबूरी में ड्राई लैंड्स की तरफ भागना पड़ता है जहां पहले से ही जमीन की भारी कमी है और यहीं से शुरू होता है असली टेंशन। जब ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड असमीज लोग नई जगह पहुंचते हैं तो उनका डायरेक्ट सामना उन माइग्रेंट से होता है जिन्हें ये लोग आउटसाइडर्स मानते हैं। तो एक तरफ जमीन कम हो रही है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है। ये प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन ही असम में इविक्शन ड्राइव्स को इतना पॉपुलर बनाती है। यहाँ के आम वोटर्स इस
মই বুজি পোৱা নাই বে, মই একদম বুজি পোৱা নাই কি কৈছে। প্লিজ লিসন কেয়াरफुली, কোনে বুজাই দিবাচোন, মই বুজি পোৱা নাই এইটো কথা। इसलिए आइडेंटिटी को लेकर अग्रेसिव है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी किसी बैंक लॉकर में नहीं है बल्कि उस रिवर बैंक में है जो अगले मॉनसून में बह सकता है। ये फियर ऑफ लैंड लॉस ही असम का सबसे बड़ा इलेक्टोरल इंजन है और इसीलिए असम में बीजेपी आज हाइपर डेवलपमेंट का दांव खेल रही है। 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है मोरेगांव में। असम के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने बड़े पैसे के साथ असम में कभी खुलेगा। सोचा नहीं था मतलब हम तो रिक्वेस्ट कर ही रहे थे भाई कि इंडस्ट्रीज आए भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सोचा नहीं था क्या होता है, सब लोग तो दरख्वास्त कर ही रहे थे। अभी आया है, बढ़िया बात है भाई, और आने बाकी है अभी, बट खुल रहा है। আচ্ছা কি কৈছে যিনে ইয়াৰ লোক মাইগ্ৰেণ্ট সমজতে, আই মিন যোনবোৰ ডিছপ্লেচ হৈছে অসমীয়া, তেহেঁতি মাইগ্ৰেণ্টখিনিৰ লগত ৰেফিউজ নিচিনা থাকিব লগা হয়, এইটো ক'ব খুজিছে। বেচিকলি আছামিজ ৰেফিউজিজ লুক ফৰ নিউ লেণ্ড বাট ফেচ বাংলাদেশিজ। চ' isn't this an illegal immigrant problem ভাই? और बीजेपी का एक और स्लोगन याद दिलाता हूँ तुम। আচ্ছা মিয়াজ হেভ ইনফেষ্টেড দ্য, কি বুলি কৈছে, বেচিকলি দ্য পিপল হু লষ্ট দ্য লেণ্ড হেভ টু ফাইট উইথ দ্য মিয়াজ বিকজ দ্য মিয়াজ হেভ ইনফেষ্টেড। চ' দ্য প্ৰব্লেম ইজ সেইটোৱে ন, মিয়াৰেতো মানে অবৈধ বাংলাদেশীৰ এটা প্ৰব্লেমটো হ'ল ন। আমাৰ মানুহে কি আমি নিজৰ অসমত গৈ কিনে এতিয়া মাটি বিচাৰিলে কি আমি আৰে विकास भी और विरासत भी। तो इसी डेवलपमेंट के बीच में एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला गया है जिसको कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन होता है जहां पे माइग्रेशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल बाउंड्री शिफ्ट की जाती है, जिससे वोटर्स भी यहाँ वहां हो जाते हैं। Okay. और अगर आपने ये गेम अच्छी तरीके से खेल लिया तो आप अपने वोटर्स को एक जगह ज्यादा रख सकते हो, जहां आपके वोटर कम है वहां पे आप जगह ही छोटी रख सकते fair enough ঠিক আছে, এইটো ঠিক আছে। हो। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज ऐसे रीड्रॉ की हैं कि जो The video is just making it seem that Bangladeshi infiltrators are not the main problem. Let's see, let's watch. उनका डोमिनेंस मैथमेटिकली सिक्योर हो जाए। ये आज का नहीं है, ये 20 साल का इंश्योरेंस है। पर बंगाल में ममता बनर्जी की तरह असम में एक और लीडर है, हेमंता बिस्वा शर्मा। Entry of the Aura farmer money. ममता बिस्वा शर्मा आज नॉर्थ ईस्ट के सबसे पावरफुल और डेंजरस पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इन्हें बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला था। Okay. और बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी जी के बाद बीजेपी का मेजर नेशनल चेहरा यही होने वाले हैं। Damn. Next prime minister निकली। इनका पूरा करियर कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्स से भरा है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तरह से वो नेता हैं जो असम में अकेले सेमीकंडक्टर प्लांट लेकर आए। All right. Now, our tech guys can come back, can work in Assam. 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस ग्राउंड पे बनवाए और असम की Great. इकोनॉमी को 2020 से 2025 के बीच में 45% से ड्रास्टिकली ग्रो करवाया, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। Amazing. Assam is Let's the go. fastest W mama. growing state in the country. दूसरी तरफ सीएम बनने के बाद मई 2021 से अगस्त 2022 के स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में स्टेट में 171 alleged पुलिस एनकाउंटर्स 171 police encounters होइसे বুলি কৈছে, 56 deaths, 145 injuries. Fake encounter, okay. The wire दिसे किंतु এইটো ঠিক আছে। हुए जिसमें 56 लोग मारे गए। उन्होंने खुद पब्लिकली कैमरा पे पुलिस को They don't understand Assam's ground reality. Some points they make are fine, but many are not. They make videos for money and views. Such trend is going on in India. সেইটো হয় বাৰু। But then চাওঁচোন কি কৈ আছে এইটো কাৰণে W কিহৰ কাৰণে? इंस्ट्रक्शन दी थी कि क्रिमिनल्स को पाँव में गोली मारो। Okay. কোনোবাই যদি পুলিচক লৈ যাওঁতে ক্ৰাইম ডিসকভাৰ কৰিব লৈ যাওঁতে যদি পলাব খোজে, পুলিচে তাকতো বুকুত গুলি মাৰিব নালাগে, না। কিন্তু ভৰিত গুলি মৰাটোতো লয়ে কয়। হয় उन पर कांस्टेंट হয় বাৰু। हेट स्पीच की पिटीशंस फाइल होती हैं। फरवरी 2026 में बीजेपी असम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये तो बहुत ज्यादा हो गया था। कमर्शियल एआई पोस्ट हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर एक राइफल लेकर मुसलमानों की तस्वीर पर पॉइंट ब्लैंक शूट करके निशाना साध रहे थे। इसके अलावा करप्शन के ट्रैक কাৰণ মানে সেইটো তেখেতৰ ইমেজো বেয়া কৰে আৰু অবভিয়াসলি মানে देयर वाज बेटर वे टू डू दिस আৰু সেইটো কাৰণে কৈছো। रिकॉर्ड में भी इनका नाम कई बार आता हुआ दिखता है। इन पे खूब एलिगेशन लगते हैं। 2014 के आसपास सीबीआई ने शारदा स्कैम में इनके घर पे घंटों तक रेड मारी। जब कांग्रेस में था हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी इनके घर के सामने प्लेकार्ड लेकर बैठ के बोलती थी शारदा का चोर है हेमंत। और ठीक उसके बाद 2015 में बीजेपी ने खुद एक इंटरनल बुकलेट रिलीज करके इन्हें लुई बर्गर वाटर सप्लाई स्कैम में की सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ভাই সিএমৰ হিষ্ট্ৰীটো যদি তোমালোকে ভালকে চোৱা ন, আচৰিত হৈ যাবা ভাই, মানে স্কেমছ এণ্ড অল এণ্ড কি ভাই, তো সেইবিলাকতো বাৰু ঠিক আছে ভাই। पर जैसे ही अगस्त 2015 में उन्होंने फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन की, एजेंसीज की सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। बीजेपी अगर किसी को चोर बोलेगा, इसका मतलब वो चोर नहीं है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है। तो हेमंता लेजिट ओ भाई, बीजेपी अगर किसी को चोर बोलेगा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है बोले। डैम, काइंड ऑफ एग्री ऑन दिस बे। ভালকে অলপ ৰিসাৰ্চ কৰি বনাব লাগিছিল ভিডিওটো, খিচৰি বনাই দিছে। আই ডোন্ট নো মানে where is the video heading, but then চাই লওঁ
अल्टीमेटली एक ऐसे नेता है जो साइमल्टेनियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स और हार्ड लाइन कम्युनल पोलराइजेशन दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में एफिशिएंटली रखते हुए दिखाई देते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पहले जीत चुके हैं और इस बार भी उनका जीतना ऑलमोस्ट तय है और हो सकता है आगे भी जीते क्योंकि वो पॉलिटिकल कोड क्रैक कर चुके हैं। सिर्फ Definitely. इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से नहीं, वुमेन वोटर्स पे उन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किया है। ट्रू। स्टेट में 1.25 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद सरकारें समझ गई हैं कि बड़ी बड़ी रैली में लोगों को जुटा के स्पीच देके मार्केटिंग में पैसा खर्च करने से आप जितने वोट नहीं कमा पाओगे, Freebies. उतना सिर्फ औरतों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, Direct benefit transfer, के उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल के All right, आप all right. उनका वोट उनसे ले सकते हो। और असम में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अरुणोदय 3.0। ये वीडियो देखो। असम মই নকওঁ একো অৰুণোদয় বিষয়ে কাৰণ মোৰ মাৰ খাব মন নাই, এহেঁতি কৈছে দেই, ঠিক আছে। के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, औरतें बस उनको देखने के लिए तरस रही हैं। एक ने तो पप्पी भी दे दी। वाओ। क्यों? क्योंकि मामा सीधा उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। मार्च 2026 में 40 लाख औरतों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 9,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। स्टेट को इसकी कीमत पड़ी 3,600 करोड़ रुपए की। लार्जेस्ट सिंगल डे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द हिस्ट्री ऑफ असम। औरतों को डायरेक्टली पैसा देना जो बंगाल में ममता दीदी कर रही हैं, हाँ, दिल्ली में definitely. रेखा गुप्ता ने सबे, किया सबे। है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया है और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, वो भी It इलेक्शन works, it works. के जस्ट आसपास। ये सारी पुरानी पॉलिटिकल टैक्टिक को पीछे छोड़ देता है क्योंकि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती है, लेकिन जब आप एक महिला को डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे देते हो, उसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो, तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पीछे छोड़ देती है और वो पहले तो आपको हीरो बना लेती है। पहले तो तुम मेरा भाई, तुम मेरा मामा। মই কি কম আৰু এতিয়া ভাই, কি কম। টকা দিছে, বহুত মজা কথা ভাই, বহুত মজা কথা ভাই। বাট টকা দিয়াৰ মানে যে তেখেত আপোনাৰ কি বুলি কয়, আপুনি তেখেতলোকৰ গোলাম হৈ যাব বা তেখেতকে ভোট দিব লাগিব, এইটো বেয়া কথা। বাট দেন ধমকিওতো দিয়া যায় ন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৱা কি মানে ফ্ৰীত খাব পাব নালাগে মানুহে। নাই নাই নাই, মই একো কোৱা নাই ভাই, অৰুণোদয় ইজ अमेजिंग। और वेलफेयर लॉजिक पे वोट देने लगती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में आदमी कितनी भी रसूख रखता हो और कितनी भी कमजोर हो, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दोनों इक्वल हैं, दोनों के पास एक एक वोट होता है। True यहाँ पे shit. एक और बड़ा আৰু অসমত তোমাৰ আই থিংক মেল ফিমেল ৰেচিঅ' অফ ভোটাৰ্ছ ইজ ফিমেলৰ অলপমান বেছিয়ে আছে নেকি, নে আইদাৰ ইটছ ইকুৱেল। মই যিমান দেখিছিলোঁ মানে পাই চাৰ্টটো, বা অলপমান আমাতকৈ বেছিয়ে আছে মানে মেল। ইটছ আমেজিং ফৰ এ ষ্টেট, বাট দেন এজ ভোটাৰ্ছ অবভিয়াছলি ইউ নিড টু বি এডুকেটেড এজ ৱেল, মানে এটলিষ্ট পলিটিকেলি अवेयर আৰু। है म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर एंड पॉप आर्टिस्ट। यहाँ पे म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रेवोल्यूशन का एक जरिया है। What to talk to On God. locals and they have been generous enough कि भाई हम आपको सिटी घुमाएंगे, तो वो भी बाहर आए हुए हैं हम लोग के साथ, जैस्मीन एंड उनका ब्रदर, तो उनके साथ गुवाहाटी घूमने का प्लान है। অলৰাইট। ঐ গুৱাহাটীৰ কোনটো পাৰ্ট হয় এইটো? আৰু বাংলা ফৰ বিগিনাৰ্ছ কিয় ওলাই আছে বে? বাংলা ফৰ সাৰ্থক গোস্বামী কিয় কি বাংলা ফৰ বিগিনাৰ্ছ চলাই নেকি? Why do Assamese people like worship Zubeen Garg so much? He was a king. King. बोल सकते हो, शेर था। जैसे एक टाइम में भूपेन हजारिका थे, हाँ। उस टाइम के आइकन, अभी भी लोग मानते हैं उनको। इस एरा के जुबिन गार्ग मतलब हम लोग के आइकन। Subliminal message? I don't know bro. लोगों के लिए बहुत किया भी है उन्होंने। क्या किया? जब फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत हेल्प करते थे, जो भी जाता था उनके पास। रेवोल्यूशनरी थे भाई, जब कोई आवाज उठाना नहीं चाहता था, गांड फटती थी सबकी, तब वो आवाज उठाते थे भाई। पूरे आसाम के लोगों के लिए वो खड़े रहते थे फ्रंट लाइन पे कि बहनचो अपने लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, मैं पहले खड़ा हूँ। एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग भाई, करप्शনৰ কথা হৈ গ'ল, গছ কটাৰ কথা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, কি কয় তোমাৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চনবিলাকক এপ্ৰিচিয়েট কৰা হৈ গ'ল, একনলেজ কৰা হৈ গ'ল, এডুকেশ্যনৰ কথা হৈ গ'ল, দুখীয়াক সহায় কৰাৰ কথা হৈ গ'ল, চব ফালে ভাই। যিমান আমাৰ পলিটিচিয়ান যে আজিলৈকে চাগে ভাবাও নাই কৰিম বুলি, তেখেতে সিমান নিজৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত নিজৰ যিমান কেপাচিটি আছে তাৰ ভিতৰত কৰিছিলে। দ্যাটছ ৱাই হি ইজ এ ফাকিং লেজেণ্ড ब्रो। হ'ব বাৰু। खाली आप तो नहीं आता। इतना फेमस आदमी थे, लेकिन आपका मन किए तो आप उनके घर जा सकते हो। सुबह उठ के On अगर God. आपने On उनको God. 5,000 रुपया 10,000 रुपया भी मांग लिया, वो नहीं पूछेंगे क्यों चाहिए, आपको दे देंगे। तो कोई भी चला जाएगा मांगने के लिए। और वैसा ही था वो। एक्चुअली जो किंग वाला जो दर्जा उनको दिया गया है इसीलिए, बिकॉज किंग क्या होता है, प्रजा के लिए रहता है। तो वो मतलब प्रजा के लिए, हमारे आसाम के लिए उन्होंने हर एक लोगों के लिए जितना किया है शायद ही कोई कर पाएगा। जब वो मर गए Absolutely, थे, bro. जिनका जब उनका मतलब निधन हुआ था, तब ऐसा लगा कि घर का कोई मर गया था। उस टाइम में हम लोग तो हर कोई रोया था उस दिन। आप रोए थे? हाँ ऑब्वियसली। मैं तो
मतलब ऐसा शौक ভাই সেইদিনাখনৰ কথাটো যে প্লিজ মনত নেপেলালে ভাল নেকি মই কিবা এডিট কৰি আছোঁ, তাৰপৰা দেখিছোঁ যে কোনোবাই মোক মেছেজ দিছে প্ৰাগ নিউজত দেখাইছে যে জুবিন দা আৰু মানে জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই। মই কিলা প্ৰাগ নিউজটো যে মানে কি বিল্লা ভাই, মানে সিহঁতে এইটো নিউজ পালেনে কাভাৰ কৰিবলৈ, এইটো কৰিব এতিয়া থাৰ্ড ক্লাছ। তাৰপৰা এটা দেখিলোঁ, দুটা দেখিলোঁ, 3টা 4টা দেখি আছোঁ ভাই জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই কি হৈ আছে। মই তাৰপিছত ক'ত ওলাই গ'লোঁ, মই ৰেপিডৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৈছোঁ দাদা আপুনি গম পাইছে নেকি কিবা জুবিন গাৰ্গ নাই বুলি নিউজ ওলাইছে। এনেই এইবিলাক নিউজ চেনেলে আলবাল কিবা দি থাকে। মই কৈছোঁ হয় বাট ৰাতিলৈকে যেতিয়া মানে ৱেন থিংছ ছেটেল ডাউন এণ্ড মানুহে গম পালে যে মানে তেখেত সঁচাকৈ নাই, ইটছ আই ডন্ট ন' মানে কিবা কেতিয়াও লগ পোৱা নাই মই তেখেতক, কেতিয়াও গান অবভিয়াছলি শুনিছোঁ, লাইভ শ্ব'ত গৈছোঁ, বিহুত বহুত নাচিছোঁ, কেতিয়াও তেখেতৰ লগত কথা হোৱা নাছিলে। বাট দেন আই থিংক মানে যেতিয়া দেউতা ঢুকাইছিলে তেতিয়া যেনেকুৱা ফিল কৰিছিলোঁ, আই থিংক আই লষ্ট ছামৱান মানে আই লুকড আপ টু আৰু ভাই। আৰু চবৰ আৱেগ অনুৰাগী था और जो माहौल था यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख वाला था। और इवन आज भी अगर उनका वॉइस में सुनती हूँ तो रोना ही आता है। आगे गए आप नहीं ऐसा गए? क्या भाई? मैं नहीं गया था, मतलब अभी तक जुबिन क्षेत्र में भी नहीं गया हूँ मैं अभी तक। क्यों? लगता है कि जाऊंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा। What's special about Zubin? उसका यूनिकनेस वही है कि वो But then- मतलब वो जो आम जनता है हाँ उन लोग के बीच में रहा, उन लोग के लिए এই गाया। ভিডিঅ'টোৰ কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই বুজি নাই পোৱা। স্পাইৰেলিং চামৱেৰ ক'ৰবাত গৈ আছে। बुढ़ापा से लेके जवानी तक मतलब वो सिर्फ एक ही काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया है और ऐसा गाना डेडिकेट किया है, गाना बनाया है, वो सब सुन सकता है। He is not a singer, okay? He can say he is a singer, he is a philanthropist, he is a social worker, he is a composer, but सबसे most important thing is ना he was a actually good human being. So you see, On God, famous होना brother. अलग बात है and good human अलग बात है। आसाम उन स्टेट्स में से एक है जहाँ एक কি কৈ দিয়ে খুৰাই। फेमस होना अलग बात है और बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग अलग बात है। डैम ब्रो डब्ल्यू बे आर्टिस्ट की आवाज पॉलिटिकल पॉलिसी बन सकती है। हिस्टोरिकली टू देखा शर्ट टू गया कवर एनीथिंग बट देन द डेडली डेवलपमेंट ऑफ आसाम बोले कैसे तो है कि जितना डेवलपमेंट आसाम में होता है उतना ही नॉर्थ ईस्ट की बाकी जगह में सीप इन करता है। You see, we do not see Assam in isolation of Northeast. Something happened in Assam. We are so interconnected that you cannot say that this is for Assam and this is not for Northeast. लेकिन इतने इंपॉर्टेंट स्टेट के आज भी अपने जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैटल्स हैं जो अभी लड़ रहा है। वो सदियों से अहोम इसलिए जीतते आ रहे थे क्योंकि वो अपने टेरेन को अपने এতিয়া মানুহে এইটো এটা কথা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বহুত মানুহে তোমাৰ অসমৰ বাহিৰত ভাবিব যে অসমীয়া মানে আহোম হয়। তো নহয় ভাই। सार्थक भाई मैं जानता हूँ कि आप इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो बट दिस विल सेंड ए डिफरेंट मैसेज कि आहोम ही बस असमीज है। ऐसा नहीं है यार। विरोधियों से बेहतर समझते थे। पर आज वही असम की धरती सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और डीपली इमोशनल इतिहास विस्तार न होए। बेस्ड है। जो आज ये हिस्ट्री, कल्चर, इश्यूज और डेवलपमेंट का बैलेंस समझ लेगा वही आगे जाके असम को चलाएगा। इस टाइम पे हेमंता ने वो कोड क्रैक कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑल राइट गुड वीडियो माने ठीक है भाई ठीक। नॉट बैड नॉट ग्रेट एग्जैक्टली इट्स ए ठीक ठाक वीडियो।